Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer art, today's topic is Introduction to MS Word 2016. So let's start the chapter. Learning objectives. Word processor, open MS Word, creating a new document, text editing, open an existing document, introduction to MS Word, components of MS Word window, saving a document, closing the document, exiting Word. Word processor. A word processor is an application software that helps us in typing, editing, formatting and printing the text. बच्चों वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हेल्प करता है टाइपिंग में, एडिटिंग में, फॉर्मेटिंग और अपने टेक्स्ट को प्रिंट करने में. नाउ डू यू नो सम पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स आर MS Word, Word Perfect, Open Office, ORG Writer, Lotus, Word Pro, Microvisions, Word Express, etc. बच्चों यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स के नाम बताए गए हैं, ठीक है, जैसे कि MS Word है, Word Perfect और ये सब. Now, by using a word processor, you can type, edit and format a text. You can apply special effects to a text. You can insert symbols, tables and pictures in a document. You can apply bullets and numbering to a text. You can check the spellings and grammar of a text. You can preview the documents before printing and also print a document. अब वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हो? आप पहले तो टाइप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और फॉर्मेट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, ठीक है. आप उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हो और आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो सिंबल्स को, टेबल्स को और पिक्चर्स को, ठीक है. फिर आप वहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हो और साथ के साथ अपने आप ग्रामर को या फिर जो आपके टेक्स्ट की स्पेलिंग होती है, वर्ड्स की स्पेलिंग्स होती है, उनको भी आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो. अगर आपको प्रिंट आउट के लिए कमांड देना है तो उससे पहले आप अपनी डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर सकते हो, फिर आप उसे क्या कर सकते हो? कमांड दे सकते हो प्रिंट आउट निकालने के लिए. नाउ इंट्रोडक्शन टू MS Word. MS Word is an application software. It is commonly known as Word. It is a part of Microsoft Office suite software package. It is useful tool for creating professional documents. These documents can include text, graphics, tables, clip arts, borders and shading, etc. The software follows the concept of WYSI WYG. What you see is what you get. This means that the screen shows exactly how your document will look when you will print it. तो बच्चों यहाँ पे हमें MS Word का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है. MS Word जो है वो एक तरह का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है. ये कॉमनली नोन है किसके नाम से? वर्ड के नाम से, ठीक है. और ये पार्ट है किसका? MS ऑफिस सूट का, ठीक है. मतलब उसमें सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें से ये भी आता है. अब ये एक यूज़फुल टूल है जिसमें आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. इसमें आपके टेक्स्ट भी इंक्लूड होते हैं, ग्राफिक, टेबल्स, क्लिप आर्ट, बॉर्डर्स एंड शेडिंग वगैरह इंक्लूड होती है. ये सॉफ्टवेयर आपके एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जिसका मतलब है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. मतलब जो आप उस पर काम करोगे वो आप देख पाओगे, ठीक है. Now facts. MS Office is a software package developed by Microsoft Corporation USA. It contains many applications like Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher, etc. तो बच्चों MS Office जो है वो आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे डेवलप किया गया था Microsoft Corporation के द्वारा, ठीक है. कहाँ पे? USA में. ये आपके काफ़ी एप्लीकेशन को कंटेन करता है जैसे कि Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher, etc. Now open MS Word. Choose Start and start typing the name of the application like Word or Excel. Search opens automatically as you type. In the search results, click the applications to start it. New document file selection window appears. It displays a list of different types of new documents in thumbnail view. Click on the blank document thumbnail. The Word 2016 software appears on the screen as shown below.
तो बच्चों आपको अगर MS विंडो MS वर्ड स्टार्ट करना है तो कैसे करोगे? सिंपली आप स्टार्ट को चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे सर्च बार आता है, आप वहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो आप उसका नाम वहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने सर्च जो है वो आपकी जो फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वहाँ पे ओपन कर देगा। फिर जो सर्च रिजल्ट है उसमें से आपको जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है उस पर आप क्या करोगे, सिंपली क्लिक करोगे। फिर आप न्यू डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करोगे सिलेक्शन विंडो से, ठीक है। फिर उसमें आपके डिस्प्ले हो जाएंगे लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट्स इन थंबनेल व्यू, ठीक है। फिर आप सबसे पहले क्लिक करोगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट थंबनेल पे। फिर आपके सामने जो वर्ड 2016 सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा आपकी विंडो पे, आपकी स्क्रीन पे। Now, do you know some other examples of word processors are WordPerfect and OpenOffice Writer? अब यहाँ पे बच्चों वर्ड के ही जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट टाइप करते हो उसके दूसरे ऑप्शंस या दूसरे एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं जो कि हैं आपके WordPerfect और OpenOffice Writer। इसमें भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड विंडो। अब जब आपके सामने MS वर्ड विंडो ओपन हो जाती है तो कौन कौन से उसमें कंपोनेंट आपको नजर आते हैं, ये यहाँ पे आपको बताए गए हैं। फाइल टैब, इट कंसिस्ट ऑफ द कमांड्स रिलेटेड टू द फाइल ऑपरेशन। फाइल टैब जो होती है इसमें आपकी सारी कमांड्स होती हैं, किससे रिलेटेड, आपकी फाइल ऑपरेशन से रिलेटेड। क्विक एक्सेस टूल बार, इट कंसिस्ट ऑफ सम कॉमन कमांड्स ऑफ वर्ड लाइक सेव, अनडू एक्सेट्रा। बच्चों क्विक एक्सेस टूल बार जो होती है इसमें आपकी कॉमन कमांड्स होती हैं, जैसे कि अगर आपको सेव करना है या फिर कोई चीज़ अंडू करनी है कोई कमांड तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। रिबन, अ रिबन इज वाइड स्ट्रिप विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल कमांड्स। आपका रिबन जो होता है एक वाइड स्ट्रिप होती है, ठीक है, इसमें आपके बहुत सारी कमांड्स इंक्लूड होती है। टाइटल बार, द टाइटल बार कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल बटन। टाइटल में आपके टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट दिखा रहा होता है, ठीक है, और आपके कंट्रोल बटन्स इसमें आपको अपीयर हो रहे होते हैं। रूलर्स, द रूलर इज यूज टू स्केल द डॉक्यूमेंट। रूलर एक तरह से स्केल का काम करता है, ये आपके डॉक्यूमेंट को क्या करता है, रूल करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट एरिया, द डॉक्यूमेंट एरिया इज यूज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा डॉक्यूमेंट एरिया क्या है, यहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो। स्टेटस बार, द स्टेटस बार डिस्प्लेज करंट पेज नंबर, टोटल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद अदर डिटेल्स। स्टेटस बार जो होता है ये आपके करंट पेज नंबर को डिस्प्ले करता है और साथ ही साथ ये टोटल पेजेस को भी डिस्प्ले करता है, ठीक है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होगे जितने पेजेस, वो पेजेस आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है, जिनमें आपकी दूसरी डिटेल्स भी क्या होती है, शामिल होती है। नाउ व्यू बटन्स, द व्यू बटन्स आर यूज टू व्यू आवर डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट वेज। व्यू बटन जो होता है ये आपके डॉक्यूमेंट को अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीकों में दिखाने के लिए ये वहाँ पे होता है। जूम कंट्रोल, इट इज़ यूज टू जूम इन एंड जूम आउट द डॉक्यूमेंट व्यू। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके देखना है तो आप जूम कंट्रोल के थ्रू देख सकते हो, इसके थ्रू आप जूम इन भी कर सकते हो और जूम आउट भी कर सकते हो। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट आर: first, click on the File tab and select the new option. Second, click on the blank document option in the new pane. A new document appears. ठीक है, अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करनी है या क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको न्यू ऑप्शन पे जाना है या उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आप क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, जो कि आपका ऑप्शन अपीयर हो रहा होता है कहाँ पे, न्यू पैन में। तो इस तरह से आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो अपीयर हो जाएगी। नाउ फैक्ट्स, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट Ctrl+N। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो आप सिंपली अपने कीपैड पे Ctrl+N टाइप कर सकते हैं। एक्टिविटी, टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ इन MS Word. Introduction to computer. My name is Vansh. I am a student. I read in ABC Public School in class 4th. I like computer subject. I like typing, playing games, watch cartoon movies and painting on computer. तो बच्चों यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है, आपको अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड को ओपन करना है और ये जो पैराग्राफ है इसे आपको वहाँ पे टाइप करना है, ठीक है।
Now typing text. Look at MS Word window. There is a line blinking on the screen. This is called a cursor. The insertion point is the blinking vertical line in your document. It indicates where you can enter text on the page. If you didn't see a cursor, then left click in the work area. Cursor shows you the position from where the text appears when you start typing. Now start typing something. In a new blank document, you can double click the mouse to move the insertion point elsewhere on the page. ठीक है, आपको अब यहाँ पे टाइप करना सिखाया गया है. ठीक है, जब आप अपने MS विंडो ओपन करते हो तो आपको एक लाइन ब्लिंक करती हुई नजर आ रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्सर कहते हैं. ठीक है, ये जो इंसर्शन पॉइंट होता है जो कि ब्लिंक कर रहा होता है वर्टिकल लाइन में, यहाँ से हमें अपना टेक्स्ट क्या करना होता है, टाइप करना स्टार्ट करना होता है. ठीक है, अगर आपको ये कर्सर नहीं नज़र आ रहा, अगर आपने सपोज अपनी विंडो ओपन की MS वर्ड की, अगर आपको ये कर्सर नहीं नज़र आ रहा तो आप सिंपली अपने जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में वहाँ पे आप कहीं भी डबल क्लिक कर सकते हो अपने माउस से, तो ये जो इंसर्शन पॉइंट है ये अपीयर हो जाएगा. ठीक है, फिर आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आप वहाँ पे टाइप करना चाहते हैं. न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो माउस पे, ताकि आप अपने इंसर्शन पॉइंट को पेज पे कहीं भी मूव करवा सको. नाउ फैक्ट्स. While typing the text, when you reach at the end of the line, the cursor automatically moves down to the next line. बच्चों, जब आप टाइप करते करते पेज के नीचे पहुंच जाते हो, बॉटम पे पहुंच जाते हो, ठीक है, तो जो आपकी लाइन का एंड होता है, तो जो कर्सर होता है वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है आपके नेक्स्ट लाइन पे. ठीक है, फिर आप वहाँ से अपना जो वर्ड होता है या टेक्स्ट होता है वो टाइप करना स्टार्ट करते हो. Now saving our document. After completing the work, save the document with a proper file name so that you can use it later. The steps to save the document are: first, click on the File tab. Second, click on the Save As option. The Save As pan appears on the right. Third, click on this PC or double click on Browse. The Save As dialog box appears. Fourth, type a file name in file name text box and click on the save button. अब बच्चों, आपने अपने वर्ड पे काम कर लिया. ठीक है, आपको अगर उसको सेव करना है ताकि आप फ्यूचर में भी उसे क्या कर सको, रीओपन कर सको उस फाइल को. तो आपको कैसे सेव करना होगा, सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा फाइल टैब में. उसके बाद आपके सामने एक सेव एज ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे. उसके बाद द सेव एज पैन जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी राइट में, मतलब वो आपसे पूछेगा कि आप इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हो. फिर आप क्लिक करोगे दिस पीसी पे. ठीक है, और फिर आप डबल क्लिक करोगे कहाँ पे, ब्राउज पे. फिर आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. ठीक है, आप फिर वहाँ पे उस फाइल को एक नेम देंगे टाइप करके और फिर आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी. नाउ डू यू नो, you can also use save option in the file tab to save a new document. It is mainly used to save the changes in an existing document, while the save as option is used to save the document with a new name. बच्चों, क्या आपको पता है कि आप अपनी फाइल को सिंपली सेव कर सकते हो सेव ऑप्शन से. ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा उसका नाम. ठीक है, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट है उसको चेंज करना चाहते हो तो आप सिंपली वहाँ पे उसका नाम को चेंज करके उसे सेव कर सकते हो. नाउ फैक्ट्स. टू सेव अ डॉक्यूमेंट, Ctrl+S. अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट की बताई गई है. अगर आपको ये लंबा प्रोसीजर नहीं करना तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे Ctrl+S जो कि सेव के लिए यूज़ किया जाता है उसको टाइप करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी. टेक्स्ट एडिटिंग. The term editing refers to the process of correcting, deleting or modifying the text in a document. Before editing, it is important to learn about the text selection. Let's learn about it. अब आप अपने टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हो. ठीक है, उसे डिलीट भी कर सकते हो और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, करेक्ट भी कर सकते हो. लेकिन पहले मतलब एडिटिंग से पहले ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि आपको टेक्स्ट जो है वो कैसे सेलेक्ट करना है. तो हम सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में सीख लेते हैं. सेलेक्टिंग टेक्स्ट. टू मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट इट. द स्टेप्स टू सेलेक्ट अ टेक्स्ट यूजिंग माउस आर:
First, place the mouse cursor at the start end of the text. Second, press the mouse button and drag it to the end start of the text. Third, release the mouse button. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है दो तरीकों से। पहले तो आप माउस से कैसे अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। सबसे पहले आप अपना माउस का जो कर्सर है वो उस टेक्स्ट के स्टार्टिंग में लेके जाओगे, ठीक है, जहाँ से भी आपको उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है या उसको एडिट करना है, ठीक है। फिर आप अपने माउस को प्रेस करोगे, माउस का जो बटन है उसे प्रेस करोगे, फिर उसको ड्रैग करके लेके जाओगे जहाँ तक आप उस टेक्स्ट को क्या करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। जब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो आप अपने माउस बटन को क्या कर दोगे, रिलीज कर दोगे, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर टेक्स्ट सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट बताए गए हैं, किसके लिए, टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट है सेलेक्ट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। सेकंड, सेलेक्ट कैरेक्टर्स टू द राइट, शिफ्ट प्लस राइट एरो की। थर्ड, सेलेक्ट कैरेक्टर्स डाउनवर्ड, शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। फोर्थ, सेलेक्ट कैरेक्टर्स अपवर्ड, शिफ्ट प्लस अप एरो की। Fifth, select a line from the position of the cursor to the end of the line, shift plus escape. Sixth, select a line from the position of the cursor to the beginning of the line, shift plus home. Seventh, select the entire document, control plus A. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको कीबोर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज दी गई हैं जिससे आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। फैक्ट्स। In the same way, you can also select the other objects like images, shapes, etc. बच्चों इसी तरह से जैसे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो इसी तरह से आप अपने दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे कि इमेज, शेप्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। Selecting text using a mouse. To select a word, double click on word. To select a line, click on the left margin next to the line. To select a sentence, click the left button of the mouse while holding the control key. To select a paragraph, click the left button of the mouse thrice in that paragraph. तो बच्चों यहाँ पे आपको माउस को यूज करते हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बताया हुआ है। Now deleting the text. Sometimes we make mistakes while typing. We can delete, remove the text and retype the correct text. Text can be deleted by the following methods. First, delete key. Place the cursor at the beginning of the text that has to be removed. By mouse, click or arrow keys and press the delete key on the keyboard. Second, backspace key. Place the cursor at the end of the text that has to be removed. By mouse, click or arrow keys and press the backspace key on the keyboard. Third, select the text to be deleted and press delete backspace keys. ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट को डिलीट करना, क्योंकि कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। तो हमें उसे कैसे हटाना पड़ेगा, कैसे रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें दिखाया गया है। तो पहला यहाँ पे बताया गया है बच्चों, डिलीट की हेल्प से आप कैसे अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। आपको अपने कर्सर को प्लेस करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, जहाँ पे आपका टेक्स्ट है उसके बिगिनिंग पे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ABC के स्टार्टिंग पे कर्सर पॉइंट को रखा गया है। फिर जब आप अपने कर्सर को वहाँ पे प्लेस कर दोगे, आपको प्रेस करना है डिलीट की। अब जितने भी लेटर्स या टेक्स्ट आप डिलीट करना चाहते हो तो उतनी बार आपको डिलीट की को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आप बैक स्पेस की से भी कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आपको कर्सर को एंड ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, डिलीट की में आपने क्या किया था, स्टार्टिंग ऑफ द टेक्स्ट में रखा था। डिलीट के बाद बैक स्पेस की में आपको एंड ऑफ द टेक्स्ट अपने कर्सर को रखना होगा। फिर आपको जो की है आपकी बैक स्पेस की, उसको प्रेस करना होगा। जितनी बार भी आप उसको प्रेस करोगे उतने ही वर्ड और लेटर आपके क्या होते जाएंगे, डिलीट होते जाएंगे, ठीक है। थर्ड यहाँ पे ऑप्शन बताया गया है कि अगर आपको कोई पूरा टेक्स्ट या सेंटेंस डिलीट करना है तो आप सिंपली उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिलीट की या फिर बैक स्पेस की को प्रेस करोगे तो आपका जो सेलेक्टेड सेंटेंस होगा या वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नाउ कटिंग कॉपिंग टेक्स्ट. Cutting the text means the selected text will be disappear from its original location and will appear at another location where it is pasted. Copying the text means the selected text will be remain at its original location as well as the place where it is pasted.
अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कटिंग और कॉपिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। कटिंग टेक्स्ट का मतलब होता है जब आप उसको कट करते हो तो इसका मतलब वो वहाँ से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और जब उसको आप दूसरी जगह जाके पेस्ट करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल जगह से रिप्लेस होकर, वहाँ से हटकर वो दूसरी जगह क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। कॉपी का मतलब क्या होता है, आप एक जगह से उसे कॉपी करते हो, ठीक है, वो वहाँ पे भी रहता है और वो दूसरी जगह भी कॉपी हो जाता है। मतलब उसकी क्या हो जाती है, दो कॉपीज बन जाती है, जो एक जगह पे भी रहती है, ओरिजिनल प्लेस पे भी रहती है, और न्यू लोकेशन पे भी क्या हो जाती है, कॉपी हो जाएगी। नाउ टू कट, कॉपी और मूव द टेक्स्ट, फॉलो दीज स्टेप्स। Step 1, select the text that you want to copy or move. Step 2, click on the Home tab. Step 3, click on Cut or Copy from the Clipboard group. Step 4, go to the required place where you want to paste. Step 5, click on Paste from the Clipboard group. ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टेप बताए गए हैं कि कैसे आप अपने टेक्स्ट को कॉपी या कट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वो जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करना होगा जिसे आप कॉपी या फिर मूव करना चाहते हो। फिर आप क्लिक करोगे अपने होम टैब पे, ठीक है। फिर वहाँ पे आप क्लिक करोगे, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, या फिर आपके सामने कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा इस तरह से क्लिपबोर्ड ग्रुप में, ठीक है। अगर आपको कट करना है तो आप कट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे आप उसे पेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। फिर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे किस पे, पेस्ट पे, तो आपका जो कंटेंट है या जो टेक्स्ट है वो दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा, कॉपी या फिर मूव हो जाएगा। नाउ अनडू रिडू। Undo is used to cancel the command. Redo is used to reverse the action of undo command. To undo, click on the undo button or the quick access toolbar. To redo, click on the redo button on the quick access toolbar. अब यहाँ पे आपको undo और redo जो बटन होते हैं, जो कमांड होती है, उनके बारे में बताया गया है कि अंडू जो होता है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए, और रिडू जो होता है वो हम उस कमांड को रिवर्स करने के लिए, जो हमने अंडू की थी, सपोज हम अंडू नहीं करना चाहते थे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अब अंडू के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आपके पास एक बटन ऐसा दिख रहा होता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, जो कि आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे नज़र आ रहा होता है। अगर आपको रिडू करना है तो वो उसके बगल में ही इस तरह का बटन होता है, ठीक है, कहाँ पे, आपकी क्विक एक्सेस टूल बार में। तो आप उसको अंडू और रिडू कर सकते हो सिंपली इन बटन्स पे क्लिक करके। नाउ फैक्ट्स। शॉर्टकट कीज टू अंडू इज Ctrl+Z, शॉर्टकट कीज टू रिडू इज Ctrl+Y। अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी दी गई है, जो कि है अंडू का Ctrl+Z और रिडू का है Ctrl+Y। नाउ let's move on to our next topic, which is inserting text. New text can be inserted between the existing text. The steps to insert the text are: first, place the cursor at the location where you want to insert the text. Second, now start typing the text. अगर आपको अपने सेंटेंस के बीच में कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको अपना कर्सर जो है उस लोकेशन पे रखना होगा जहाँ पे आप टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। जब आपका कर्सर वहाँ पे आ जाएगा तो फिर आप वहाँ से अपने टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो। नाउ क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। After finishing the work in the document, you can close the document. The steps to close a document are: first, click on the File tab. Second, click on the Close option. The document will be closed. अब बच्चों, आपने वर्ड पे अपनी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब आप उसको क्लोज करना चाहते हो तो आप कैसे क्लोज करोगे, सिंपली आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। Note: if you have not saved your document, then an alert dialog box appears to confirm about it. Save the document before closing. Close the document without saving. Third, cancel the close action. बच्चों, अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट को बिना सेव किए क्लोज कर देते हो तो आपके सामने एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाता है, जो कि आपसे पूछता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट को बिना सेव किए क्लोज करना चाहते हो, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन आपसे पूछता है कि या फिर आप उसको सेव नहीं करना चाहते, या फिर उसको क्लोज करने से पहले आप सेव करना चाहोगे, या फिर आप क्लोज एक्शन को कैंसिल करना चाहोगे। 3 कमांड आपसे पूछी जाती है। द डॉक्यूमेंट विल बी क्लोज्ड।
हेयर क्लिक द रिक्वायर्ड बटन। ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। नाउ ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। As you know that the saved document can be opened to view or modify at any time. The steps to open an existing documents are: first, click on the File tab, second, click on the Open option, third, click on this PC in the right pane, or fourth, click on the Browse button. The Open dialog box appears. Fifth, select the required document and click on the Open button. The selected file will be opened in the Word window. बच्चों, आपने अपनी फाइल को सेव किया, ठीक है। अब सपोज आपको कुछ दिन के बाद या कुछ हफ्तों के बाद आपको वो फाइल रीओपन करनी है, तो आप कैसे उसे ओपन करोगे? सिंपली आपको अपने फाइल टैब पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आप दिस पीसी में क्लिक करोगे और आप क्लिक करोगे ब्राउज बटन पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा और उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो, ठीक है, आप उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे और फिर उसके बाद आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे, तो आपकी जो सिलेक्टेड फाइल है, जो रिक्वायर्ड आपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया था, वो ओपन हो जाएगी आपके वर्ड विंडो पे। नाउ फैक्ट्स। टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, Ctrl+O। अगर बच्चों आप इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते तो आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O प्रेस कर सकते हो। कहाँ पे? कीबोर्ड पे। Exiting Word. After completing all the work, you can close the Word window. Click on the close button on the title bar to close the Word window. तो बच्चों, सपोज आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आपको अपनी फाइल को, जो आपने वर्ड विंडो ओपन किया था, उसे आप क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है, जो कि आपके टाइटल बार पे राइट हैंड साइड पे अपीयर हो रहा होता है। तो उससे आपकी जो वर्ड विंडो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। अ वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स in for typing, editing, formatting and printing the text. MS Word is an application software and commonly known as Word. The term editing refers to the process of correcting, deleting or modifying the text in a document. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.